Good morning, dear students. Welcome back to the chemistry class. In the previous class, we have discussed about the concept of average atomic mass. But now I am going to move to the next concept, that is the concept of molecular mass. So before going to start the next concept, थोड़ा previous class में जो discuss किया है उसके बारे में थोड़ा recall कीजिए. In the previous class, we have studied about the concept of atomic mass. We have solved some problems and I have assigned some homework. So by hoping all of you solved the problems, answer आपको आया होगा, correct, right? So let's move to the next concept. Concepts of molecular mass. Molecular mass के बारे में discuss करेंगे. Molecular mass. Note the next heading, molecular mass. As you know the definition of molecule, because in the last class, before that, concepts of atoms and molecules, types of different atoms, homoatomic molecules, heteroatomic molecules. According to Avogadro's hypothesis, we have defined the atom as well as molecule. Molecule which have an independent existence. The smallest particle of a substance, the ultimate particle of the substance, which have independent existence is known as molecule. Right? तो वो smallest molecule हम consider करेंगे, उसका mass क्या है? How we are going to determine? And as in the concepts of atomic mass में, since atom is very small, therefore it is not possible to determine the atomic mass even with a very sensitive balance. Similar to that, molecule भी हम क्या बोल रहे हैं? How we are defined? कैसे define किया molecule का? Molecule is also a simplest small ultimate particle of a substance, either compounds or different molecule, which is capable of independent existence. उसका mass determine करें. Now, before going to that, can you give some example of molecules? Molecule का example दे सकते हैं आप? Examples of molecules. Hydrogen is an element or molecule? Single element. H2 is molecule. Right? Oxygen, O2 is molecule. अगर single लिखा तो it is an element. Now it is molecule. Water. Molecular mass. Simply molar mass. हम compound को भी ले सकते हैं. H2. Simple molecule, methane, simple molecule methane, ethane, C2H6, ethane, benzene, C6H6, ethyl alcohol, C2H5OH, molecule of sulfuric acid, H2SO4, sodium hydroxide compound, NaOH, calcium carbonate, CaCO3, magnesium sulfate, MgSO4, magnesium carbonate, MgCO3, etc. Different molecules here. So इसका मास फाइंड आउट करने के लिए आपको एटॉमिक मासेस याद रखना पड़ेगा. हाइड्रोजन का मास कितना है? 1. कार्बन का 12. ऑक्सीजन का मास 16. नाइट्रोजन 14. कैल्शियम 40. ऐसा 1 to 20 तक मैंने ऑलरेडी आपको दिया है. So here
molecular mass or molar mass can be simply expressed as the sum of atomic masses of all the elements present in that molecule. क्या है इसका डेफिनेशन? It is simply expressed as it is the sum of atomic masses of all the elements which is present in that molecule. देखिए यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसमें एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। कितना है? 2। तो दोनों को ऐड कीजिए। एक हाइड्रोजन का मास है 1, दूसरा हाइड्रोजन का भी 1 है, 1 + 1 2। द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। कितना हाइड्रोजन है? 2 है। सो दोनों का ऐड किया तो कितना हुआ? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का मास 16 है, प्लस यहां पर तो 2 ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। गुड। नाउ वाटर का देखिए, वाटर मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है और कौन सा है? देखिए, हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स है। एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। टोटल 3 एलिमेंट्स आर देयर। सो इसका मास आपको पता है, तीनों का मास ऐड कीजिए तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन का मास प्लस 1 हाइड्रोजन का मास और एक कौन सा है? ऑक्सीजन। सो टोटल मास कितना हुआ आपका? 18 इज द मोलर मास। ये मोलर मास आया आपका वाटर का। मीथेन का मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहां पर कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का मास कितना है? 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है आपका। 4 हाइड्रोजन का मास 1 + 1 + 1 + 1। 4 हाइड्रोजन 4 × 1 और 1 + 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 4। तो कितना मास हुआ इसका? मीथेन का मास 16। कैन यू कैलकुलेट द मास ऑफ दीज एलिमेंट्स? फाइंड आउट कर सकते हैं ना? तो आज का क्लास में सिंपल मॉलिक्यूलर मास का कांसेप्ट है, बहुत आसान है आपको। तो लेट्स कंटिन्यू। इथेन का मास कितना है? बोलिए फटाफट। इथेन 2 कार्बन है, एक कार्बन का मास है 12, 2 कार्बन है 12 × 2 24 प्लस 6 हाइड्रोजन 6। टोटल कितना हुआ? 30। वेरीफाई कीजिए एक बार। 30। बेंजीन का मास कितना है? 6 कार्बन है। कार्बन का मास कितना कार्बन कितना है? 6 कार्बन। उसका मास कितना है? 12। ये कार्बन का मास हुआ, टोटल कार्बन का मास। क्योंकि 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 है, तो ऐसा 6 कार्बन है, तो टोटल कार्बन का मास ये हुआ है। प्लस 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 है, तो ये 6। तो टोटल कितना होगा इसका? 12 6 72 प्लस 6, तो ये हुआ आपका मोलर मास ऑफ बेंजीन, दैट इज इक्वल्स टू 78। नाउ C2H5OH, कार्बन कितना है ये मॉलिक्यूल में? 2 कार्बन है। कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास क्या है? 16। डायरेक्टली 16 में लिख सकते हैं, 1 × 16 लिखने का जरूरी नहीं आपको। प्लस हाइड्रोजन कितना है? टोटल हाइड्रोजन यहां पर 5 और 1 6, तो 6 × 1 दैट इज 6। सो देखिए टोटल कितना हुआ? 12 2 24, 24 प्लस 16 40, 40 प्लस 6 46, 46 is the molecular mass। सल्फ्यूरिक एसिड का सिमिलरली फाइंड आउट कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना है? बोलिए फटाफट। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 2 हाइड्रोजन, 2 × 1 that is 2
प्लस सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना 16, तो ये टोटल हो गया आपका 2 प्लस 32 34 और ये 16 इंटू 16 इंटू 4 16 4 जा 64 16 टू 32 32 64 हो गया 16 4 जा 64 प्लस 34 60 plus 30 90 4 plus 4 4 98 is its molar mass 98. Now similarly NaOH का सोडियम का मास 23, कितना है सोडियम एक ही है तो इंटू 1 23 रहता है, प्लस एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा इसका मास 40. कैल्शियम कार्बोनेट का मास CaCO3, कैल्शियम का मास कितना है 40 प्लस एक कार्बन का मास 12, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास 16 3 जा 16 48, तो टोटल कितना हुआ 40 प्लस 10 50 90 100, टोटल मास इज 100. करेक्ट है या रॉन्ग है चेक कीजिए एक बार. नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम मास 24 प्लस सल्फर का मास 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन बोले तो 4 इंटू 16 रहता है तो इसका मास 64 कितना हुआ 60 प्लस 30 90 90 प्लस 20 110 प्लस 10 120. मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का 24 कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 that is 48, that is equals to कितना हुआ 48 plus 2 50 60 70 80 84. शायद कॉन्सेप्ट आपको सिंपल होगा ये तो फाइंड आउट कर सकते ना. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, टेक द होमवर्क लीजिए इसका. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना चाहिए आपको. ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6. सेकेंड यूरिया का मास CONH2 taken twice, ये इसका फॉर्मूला है यूरिया का फॉर्मूला. यूरिया आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने ऐसा लिखा होगा इसको NH2CONH2 तो वही हुआ. 2 NH2 ग्रुप है इसलिए मैं ब्रैकेट में ऐसा सिंपल वे में लिखा है. थर्ड वन सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11. फोर्थ वन ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है H2C2O4.2H2O. इसको देखिए इतना सॉल्व कीजिए, बाद में 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18 इंटू 2 18 इंटू 36. इसको 36 ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ये डॉट बोले तो मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट ऐड कीजिए. नहीं तो एज यूजुअल एज यूर विश. 2 हाइड्रोजन यहां पर है, 4 हाइड्रोजन यहां पर है, टोटल 6 हाइड्रोजन ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं आप, प्रॉब्लम नहीं. ऑक्सैलिक एसिड का हो गया.
फिफ्थ वन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3CuOH, CH3CuOH। नाइट्रिक एसिड, HNO3। some of the compounds like copper sulfate, pentahydrate। यहां पर एक एलिमेंट का मास दे रहा हूं मैं कॉपर का, क्योंकि बाकी का आपको पता है। कॉपर का भी शायद लास्ट टाइम दिया होगा, 63.5 है इसका, 63.5 कॉपर सल्फेट। जिंक कार्बोनेट, जिंक का भी मास दिया है आपको 65.5 जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4। 10th वन अल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 टेकन थ्राइस। ब्रैकेट में है कितना सल्फर है, देखिए आप ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक सिंपल हिंट दे दूं मैं यहां पर, Al2SO4 टेकन थ्राइस अल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहां पर 2 अल्यूमिनियम से 2 अल्यूमिनियम Al 3 सल्फेट ग्रुप है SO4 SO4 SO4। अब इसका पूरा मास आपको ऐड करना पड़ेगा। 2 अल्यूमिनियम में 1 2 3 सल्फर है, 4 + 4 + 4 12 ऑक्सीजन है, तो इसका टोटल मास ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐसा फार्मूला कंपाउंड ब्रैकेट्स में अगर रहा तो 3 सल्फर है, 3 4 12, 3 सल्फर 12 ऑक्सीजन 2 अल्यूमिनियम। सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आई हैव एक्सप्लेन, थोड़ा ऐसा कुछ ब्रैकेट्स में रहा तो कैसे सॉल्व करना होगा। नाउ यू नीड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। सॉल्व कर सकते हैं ना आप इतना? चलो ठीक है। तो नाउ टुडेस क्लास में, इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। बहुत सिंपल कांसेप्ट है। कौन सा भी मॉलिक्यूलर मास नहीं तो मोलर मास फाइंड आउट करो बोले तो ये फॉर्मूला जैसा अब हम सॉल्व किया ना, ऐसा ही सॉल्व करना। मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोइकियोमेट्री में कंपलसरी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना बहुत है। हाँ, बहुत जगह आते हैं आपको। मैक्सिमम based upon the molecular mass we are going to calculate the equivalent weight and other stoichiometric calculations also. So let's practice. You just solve these problems. In the next class we'll move to the next percentage composition के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली परसेंटेज कंपोजिशन मोल कॉन्सेप्ट के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए आया है तो परसेंटेज कंपोजिशन आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट एक फार्मूला है और उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा आपको। नाउ यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स राइट नाउ। ओके, थैंक यू।